Jai Hind, good morning, each and everyone, and a warm welcome to the Satyajit Ray Hall SVSU. And I, Dr. Preeti Singh, welcome you in this lecture series. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय की ओर से एक लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है जिसमें हम समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं और आज का हमारा मुद्दा है, आज का हमारा विषय है इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। I welcome our founder sir on this occasion, Dr. Atul Krishna sir. A big round of applause for sir. Honorable Pro VC sir, Professor Dr. Abhay Shankar Gowda sir. Respected CEO, Professor Dr. Shailraj ma'am. And the guest speaker of today, Dr. Shantanu Mukherjee, IPS retired, सिक्योरिटी एनालिसिस्ट एंड एडवाइज़र। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और सभी के चेहरे की खुशी ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज का कार्यक्रम कितना अच्छा और कितना बेहतरीन होने जा रहा है। इसी के साथ यहाँ उपस्थित सभी डीन्स, HOIs एंड HODs का मैं स्वागत करती हूँ और आप सभी का शुक्रगुजार भी हूँ कि आप अपने समय से थोड़ा समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए। Now, I would like to request our CEO ma'am, Professor Dr. Shailraj, to present sapling to the guest speaker of this event, Mr. Shantanu Mukherjee, retired IPS officer and security analyst and advisor. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Now, I am going to call Colonel Rajesh Tyagi, Director, Captain Amrik Singh Subharti Defense Academy. आज सर हमें बताने जा रहे हैं कि किस तरह से श्रीलंका के साथ जो हमारा युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, उसमें उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि वीरों के लिए युद्ध अंतिम विकल्प होता है, कायरों के लिए युद्ध प्रथम विकल्प होता है और भारत एक ऐसा देश है जो वीर देश है और उसके लिए हमेशा युद्ध अंतिम विकल्प रहा है और उन युद्ध के साक्षी बने हैं प्रोफेसर कर्नल राजेश त्यागी सर। सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि वॉर को लेकर आपके जो एक्सपीरियंस रहे वो हम सभी के साथ साझा करें। Am I audible? Am I audible at the back? Jai Hind. Respected and Honorable Chief Guest Sir, Honorable Founder Sir, Respected CEO Madam, Pro Vice Chancellor Sir, all the present principals, HODs, HOIs, faculty members and dear students. Today it is my proud privilege to stand in front of you and share my war experiences with you. It's an opportunity given by Honorable Founder Sir, and I am thankful to him for giving this opportunity. Talking of my war experience, I have served in various terrains, in various operations during my entire 34 years of service with the Indian Army. I was commissioned to Fort Jar, an infantry battalion, sir, and I have experienced the IPKF operations in Sri Lanka. It was not a war against Sri Lanka, it was a sub-conventional war against the LTTE, a militant organization. Thereafter I have been part of Operation Vijay, that is Kargil War, in 1999. And I have been in Northeast, in Nagaland, Manipur, Assam, J&K. Basically and broadly, the Indian security concerns and threats can be divided into three parts. I will not dwell upon them, I will just introduce them to you. One is conventional war, conventional threat, that is from our adversaries Pakistan and China. Secondly, sub-conventional war, that is a war from within the country. The enemy is our own citizens of this country. They are not enemies, but they wage a war against the state. And of course they are aided and helped by our adversary Pakistan and China. Then we have the nuclear threat. That I am not going to talk about.
because that is not my mandate as of today. I will first share my experience of the Kargil War with you. It was in the first week of May 1999. My unit was deployed in an area called Kaksar subsector of Kargil sector of J&K. During the winters, there was an agreement. There was an ongoing agreement between India and Pakistan all along the line of control. The snow-clad peaks, the high altitude, super high altitude posts would be vacated for the period of winters, basically to avoid any winter casualties. So accordingly, Fort Jat had also vacated one of the posts of that category, that was Bajrang Post. Now this Bajrang Post was vacated somewhere in October 98 and was to be reoccupied in the first week, second week of May. A small recce patrol under one leader, Captain Saurabh Kalia, with 5 brave men of Fort Jat, a repellence patrol was sent to the Bajrang Post. Now as they approached the Bajrang Post, they were fired upon. Once they were fired upon, they retaliated. However, it was a very small patrol and the strength of enemy on that post was around 75-80 of them. Now 75-80 of them entrenched in well-defined place at a height and 6 men approaching them, of course with weapons. It was no match. So these 6 men, although they fought valiantly, were captured. What happened after they were captured was horrific. After capturing them, the Pakistani army soldiers and officers started asking them about questions about the Indian army. They did not budge. These 6 brave men did not budge. They did not speak out anything against the Indian army. What happened thereafter is they started torturing them to get some information out of them. In that torture, they washed their eyes out, pierced their ears, cut their tongues, severed their private parts, and whatever they could do, they tried all their might against these 6 men. But these 6 men did not budge. And finally, they were all killed. They preferred to be martyred rather than being called traitor. That is the Josh, that is the teachings of Indian Army. On the other hand, I would also like to tell you what the Indian Army does to its prisoners of war or the dead of the Indian soldiers. On our side of the line of control, there are many Pakistani soldiers who were killed. Once they were killed, we wanted to hand the bodies over to Pakistan Army, but the Pakistan Army was in denial. They said their soldiers are not participating in this war and it is a war waged by the Kashmiri militants. So they did not accept their own soldiers' dead bodies. And what we did, as per the highest traditions of the Indian Army, Indian culture, we buried them all with full military honors, deserved by a soldier, whether it is an enemy soldier or our own soldier. The due respect has to be given. So we had given that due respect to them. So this is the difference between Indian Army and the barbaric Pakistan Army, which was visible during this war. Now from here I will take you to the time constraints. I have much to talk, but I will tell you about my experience in the northeast in a sub-conventional war. There is a place called Digru-Saikoma Reserve Forest, which is in Tinsukia, north of Tinsukia, Assam. There is a militant group called ULFA, United Liberation Front of Assam, which had waged war right in 1979 onwards
against the Indian state. So ULFA had established 2 camps in a dense jungle that was called Dibru-Saikhowa Reserve Forest, which is an island within Brahmaputra, riverbed of Brahmaputra. It is a 765 square kilometer jungle, and as a CEO of Forja, I was given this task to search and destroy these hideouts of ULFA militaries. So I was in a different place called North Lajipur, that was on the south bank of Brahmaputra, and Tinsukia towards the north bank. So I shifted my base to north of Brahmaputra to Tinsukia and established along the river bank an established post, army post, and started gathering inputs about the ULFA. It was on 30th of August 2005 at 9 o'clock in the morning. I received a radio intercept that one ULFA station was talking to another ULFA station saying that a person with 50 pencil cells would be reaching his village in the Dibru-Saikhowa and would be delivering those 50 cells to the camp. So we learned that there was a camp. It was confirmed that the camp was there. Now, I passed on this information to my patrols. One of my air patrol caught hold of this boy who was carrying 50 pencil cells. Now those 50 pencil cells were captured and brought to the battalion headquarters. I started interrogating the boy, Amal Tebu was his name, a local. I started interrogating by night, 2200 hours or so, like 10 p.m. or so. He confessed that he was carrying it for ULFA militaries. So in the night itself, I planned the operation, and at 3 o'clock in the morning on 31st August 2005, I launched an operation into Dibru-Saikhowa Reserve Forest with 40 boats, because it was only accessible through boats. So with 40 boats, we launched an operation from all the directions. And by 1st September, early in the morning, we hit 2 ULFA camps which were recently abandoned. Recently means 5 minutes before the arrival of troops there. And they had abandoned, there was hot food there, rations there, and other things which we captured, the radio sets, the weapons, and we could assist from the duty roster that there were 20 odd militaries there who were holed up in that operation, in that area. Ladies and gentlemen, it took us 37 days. It was such a dense jungle. 37 days to get hold of all these guys. However, during this operation, we were able to kill 8 of them, 8 out of 20, which included their finance secretary of ULFA. Now once the finance secretary of ULFA was killed by us, the hierarchy of ULFA started crying foul. There was adverse media publicity against the operation, and there was a People's Consultative Group formed within that operation, which approached the NSA and the Indian government to stop the operation, and they were ready for talks and ceasefire. It was on 7th of October, 37 days after the operation was launched, the PMO stopped our operation. However, the outcome of the operation was that a ceasefire came into effect. 2 companies of 28 Battalion ULFA surrendered after the operation. Long-lasting peace started, and once the ceasefire started, I will explain what the ceasefire is. You would stop firing at each other, stop operations against each other, suspension of all operations against each other. So that was achieved by this operation, and many of us got awards there because of the successful operation. Ladies and gentlemen, I am short of time right now. I will take another opportunity sometime with blessings of Honorable Founder Sir to share other experiences of Sri Lanka, the Indian peacekeeping forces, and Nagaland and Manipur at a later date. I thank you all for patient listening. Thank you so much. Jai Hind.
थैंक यू सो मच सर। आपने एक इतना अच्छा अनुभव हम सभी लोगों के साथ साझा किया है जिसके विषय में शायद हम में से बहुत से लोग कभी जान ही नहीं पाते। और सर अ बिग सैल्यूट टू यू कि आपने 34 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में हम आपसे मिलकर अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जो जिज्ञासाएं हमारे अंदर आती हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एक्सपीरियंस। Now I would like to call Pro VC sir to give a brief introduction of today's chief guest. Jai Hind. Honorable Founder Sir, Dr. Atul Krishna Sir, respected CEO Madam Dr. Shailya Raj, all the deans, HOIs, HODs, faculty who have come here, and dear students. Today we have gathered here for the Central University Guest Lecture Series, and it gives me immense pleasure to introduce our guest speaker, Sri Shantanu Mukherjee, IPS. He was born in Allahabad and an expertise in security matters. After a career of more than 45 years in the field, he is a postgraduate in modern history from University of Allahabad and joined the police service in 1976. He served with distinction in communally sensitive and trouble-prone districts of the state of Uttar Pradesh. He was deputed to the Ministry of External Affairs, Bureau of Security to strengthen the security of Indian diplomatic missions abroad. Subsequently, he was handpicked for the Elite Special Protection Group, SPG, responsible for the security of the Prime Minister of India. After 7 years at SPG, he was inducted into the Cabinet Secretariat, where he served both in India and abroad on matters of national security interests. Sri Mukherjee is awarded the prestigious Indian Police Medal for Meritorious Service in 1989 and President's Police Medal for Distinguished Service in 1999. Post-retirement, he served as a National Security Advisor, NSA, to the Prime Minister of Mauritius from 2010 to 2015, after which he returned to India and is a security analyst and commentator, sharing his views as a columnist on security-related issues in national and international newspapers, and a guest speaker on security topics. There are a lot of other accomplishments, probably most of them were deep cover and also classified information which the government of India would not reveal, and this is a limited information which we have collected because of the security reasons. And besides security, he also enjoys traveling, writing, prose and poetry, and reading literature in English, Hindi and Bangla. He has edited 2 books on Bhagavad Gita and Kishkindakand. He has translated English to Hindi poems and has written a concise book on composition of Gurudev Rabindranath Tagore. He is fond of good music and is a very good storyteller. He inspires the youth and the children. He is presently residing in Noida and is the advisor NatStrat, a think tank on geopolitical and security affairs. It is an honor, sir, to have you here. And on behalf of Swami Vivekananda Subharati University, I welcome you, sir, and thank you for being with us. Thank you. Thank you so much, sir. जैसे कि सर ने बताया कि शांतनु सर बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। आपने उनको यूट्यूब पर और टीवी पर बहुत देखा होगा। आज आप उनको लाइव देखने जा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस लाइव सुनने जा रहे हैं, क्योंकि केवल थ्रेट्स हमें बॉर्डर पर फेस करने के लिए नहीं मिलते हैं, बल्कि हमारे इंटरनल भी थ्रेट्स होते हैं। और शायद इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, बड़ी परेशानी भी है कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सो आई एम वेलकमिंग शांतनु सर ऑन द स्टेज फॉर द लेक्चर। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, फाउंडर और माय वेल विशर डॉक्टर अतुल कृष्णा को एक छोटी, अभी इन्होंने हमारे इंट्रोडक्शन में प्रो वीसी साहब ने जिक्र किया अबाउट भगवत गीता। तो एक फैमिली में गीता लिखी चली आ रही है 1899 से, बहुत बहुमूल्य किताब है। उसका नवीन संस्करण जो है सबसे नवीनतम, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है गीता में, अंग्रेज़ी में है। मैं उनको भेंट करना चाहूँगा एज अ टोकन ऑफ माई रिस्पेक्ट फॉर बीइंग द फाउंडर of such a massive university which is pursuing
the ideals of Ma Saraswati and in the name of Swami Vivekananda. उस पे आओ। गीता फॉर एवरीवन। अभी बहुत कुछ कहा गया और इससे मैं बहुत सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एंड आई एम रियली वेरी टच्ड बाय दिस ऑनर गिवन टू मी, वेरी प्रिविलेज टू हैव कम टू दिस एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी एंड स्पीक टू यू ऑन इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी सब्जेक्ट है, वेरी स्पेशलाइज्ड, बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने पर। उसके कई कारण हैं। सुभारती यूनिवर्सिटी मैंने नाम सुना था, उसमें स्वामी विवेकानंद है वो हमने नहीं सुना था। आके देखा कि वो भी जुड़े हुए हैं। असीम आशीर्वाद है स्वामी जी का और इस यूनिवर्सिटी को जो सुभारती है। और स्वामी जी पोस्ट 1893 भारत और ये भारती के बारे में ही सोचते थे, उसी पे कल्पना करते थे और मार्गदर्शन दिया लोगों को। और उसी यूनिवर्सिटी प्रांगण में आज आके बात करना आपके साथ is a matter of great special privilege for me, for which I am indebted to Dr. Atul, Madam CEO, and all of you. I will remember. Number two, to set the tone. Tyagi Sahab, who is a war veteran, Kargil के बारे में बताया. I am grateful to him for absolutely igniting the जोश amongst all of us. और ये वीर तो है ही हैं, और वीरांगना लक्ष्मीबाई का भी यहाँ नाम है। इज़ अ ह्यूज कॉम्बिनेशन ऑफ सरस्वती, विवेकानंद एंड लक्ष्मीबाई ऑल टुगेदर। तो दैट डबली enthuses me and brings back a lot of considerable enthusiasm to me, for which I am grateful. Number two, before I start my talk, is that the connection with Meerut. As a police officer, as a young police officer in 1978, I was posted to Meerut. I was handpicked by the then IG, उस वक्त DG नहीं होते थे, लाल सिंह वर्मा, who belonged to बड़ौत। अब बोले इसके शहर को ठीक करो। I, as a Bengali, settled in Allahabad, came to Meerut। वो क्रांतिकारी जगह है जिसने आज के हमारे अंदर काफ़ी जोश भर दिया। और 78 से 81 तक मैं मेरठ में तैनात रहा। तो ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड हमारा है जो कि मेरठ के साथ जुड़ा हुआ है, अनशेकेबल, अनब्रेकेबल। और इसके प्रोफेशन ने दैट गेव मी अ क्वाइट एन अपलिफ्ट टू मी in my career and in my personal life. In career in the sense, then I was posted abroad to look after the security of the diplomatic missions all over the world, with particular focus in Dhaka, that is Bangladesh, which was then only 10 years old as an independent country. Azad hue thode hi din hue the. Personally, because my first child, my daughter, was born here in Meerut, wo bhi krantikari kisam ki hui. So I am indebted to Meerut as well as to the Subharti University, which has done progress in leaps and bounds in the last 15 years, for which I congratulate Dr. Atul Krishna and all. And that's it I wanted to say about Meerut, and my thanks to you all. Coming back to India's security concerns. India, जैसा आपको मालूम है, is a huge country, so much of population, so naturally the security concerns are multiple. ऐसा नहीं है आजकल अखबार के दिन है, डिजिटल वर्ल्ड के दिन है, गूगल इज़ अवेलेबल और उसमें सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है। ऐसा आपको शायद लगे कि ऐसी कौन सी नई बात ये बता रहे हैं, इतनी बड़ी बात बताई गई कि सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। इनमें कुछ चीज़ें हैं जो कि जानना ज़रूरी है। अगर आपकी जानकारी में है भी, स्टिल आई वुड लाइक टू अराउज सम इंटरेस्ट इन यू, और जानना ज़रूरी है। बिकॉज ये यूनिवर्सिटी आपकी ऐसी है जिसके अंदर की हमने देखा कि रेवोल्यूशनरीज कोई नाम नहीं छूटा। बगीचे में भी आप शहीदों को याद कर रहे हैं, हर फूल पे नाम लिखा हुआ है, हर एक जगह पे है। जहाँ से जाओ हमने सोचा गलती से कोई नाम छूट गया होगा, वो भी नहीं है। तो इस पृष्ठभूमि में आपको अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पेरेटिव ऑन योर पार्ट टू नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। और सिक्योरिटी इज़ द मेन कंसर्न
जब ओसामा बिन लादेन मारा गया 2 मई 2011 को, लोगों ने सोचा अब आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ साल पहले ज़वाहिरी उसका नंबर 2 मारा गया, लगा कि अब आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रोज़ाना हम अखबार में पढ़ते हैं मरते चले जा रहे हैं। हर कंट्री अफेक्टेड है एंड इंडिया इज़ नो कंसर्न। तो फर्स्ट चैलेंज जो सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया का है वो है टेररिज्म। हमारे बहादुर पुलिस और सेना, जिसकी एक झलक आपने देखी, उनके साथ ये हुआ कि अभी तक कोई ऐसी वारदात नहीं हुई हो इन रीसेंट टाइम्स जिससे कि हम कह सकें कि वी हैव लोअर्ड आवर गार्ड। लेकिन टेररिज्म का थ्रेट ये अभी भी लूम्स लार्ज, मतलब बहुत प्राथमिकता के आधार पर ऑन प्रायोरिटी वी हैव टू डील विद इट। नाउ यू विल नो और लाइक टू नो कि ये थ्रेट्स हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं। अभी उन्होंने जिक्र किया त्यागी साहब ने कि द थ्रेट इज़ फ्रॉम आवर एडवर्सरीज, यूज द वर्ड पाकिस्तान एंड चाइना। यस, पाकिस्तान हमारा नेबर है। एक बहुत बात ये होती है, कोई भी चीज़ होती है हम उसमें कहते हैं पाकिस्तान, लेकिन इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, और इसको जानने के लिए हम आपको ब्रीफली बता देंगे कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत क्या है और क्यों वो इंडिया को पिन प्रिक करता है या नीडल करता है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। पाकिस्तान में आज 1 साल हो गए पिछले गवर्नमेंट को हटे हुए। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड शहबाज शरीफ, ही इज़ अ पंजाबी, दैट इज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब, इज़ द प्राइम मिनिस्टर। ही इज़ 1950 बॉर्न और वो अभी ताकत में है एक अलायंस में। पाकिस्तान में फ़ौज हमेशा 1948 में, इन पर्टिकुलर आपने सुना होगा ISI, विच इज़ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो बहुत एक्टिव है। इंडिया में जैसे हमारी गुप्तचर संस्थाएं हैं और जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, यहाँ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है। कोई भी संस्था बिना शासन के अनुमति के, अनुमोदन के कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करता जो कि दूसरे देश को क्षति पहुंचाए। बट ISI ऐसा नहीं है, वो फौजी है और बहुत ताकतवर है। आपके अंदर कई लोग, यंग माइंड्स, ये कह सकते हैं फर्टाइल माइंड्स, कि हमारे को भी ये होना चाहिए, बट हमारे ट्रेडिशंस ये नहीं है कि इसने मारा तो हम भी करें। तो पाकिस्तान में ISI इज ए स्टेट अनटू इटसेल्फ, माने देश के अंदर एक देश है। वो इंडिया के फर्जी नोट छपा देगा और यहाँ सर्कुलेट कर देगा हमारे इकोनॉमी को ख़राब करने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो ए सिक्योरिटी कंसर्न। वो असलहे इंडिया के टेररिस्ट ग्रुप्स को भेजेगा। अभी हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बताया, उल्फा के बारे में ऑपरेशन बताया कि उल्फा में इंटरसेप्ट किया, जो असम का सबसे बड़ा उग्रवादी ग्रुप है, 1979 में बना था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। अब उन्होंने जब स्थापना करी थी अपने आउटफिट की, तो उन्होंने जितने बांग्लादेश से घुसपैठिए आए थे उनको आसाम से निष्कासित करने के प्लेटफॉर्म पे उल्फा वॉज फॉर्म्ड। बट लेटर द सेम उल्फा was patronized by Pakistan by ISI. Let me tell you, ladies and gentlemen, and the young minds, Ulfa cadres were trained by Pakistan in Pakistan. Similarly, other insurgent groups, हम बाहर के ग्रुपों को अगर ट्रेन करें अपने नीति के अनुसार, अपने पॉलिसी के अनुसार, तो अब अपने आप ये नहीं तय करते। हमारे यहाँ एक शासन प्रणाली है, एक लोकतंत्र है। उन्होंने हमारा हवाई जहाज 1999 में हाईजैक कर लिया, IC-814, एज ए रिटेलिएटरी मेजर। हम सोचे कि हम भी कर लेंगे, तो उतना ईजी नहीं है। हमारे यहाँ उसके परमिशन की आवश्यकता है, अप्रूवल की आवश्यकता है। इसलिए ISI अब इतना बड़ा हो गया है
इतना ताकतवर हो गया है कि उनके गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में नहीं है। एक बार हम प्रधानमंत्री के साथ जा रहे थे कहीं, तो नवाज शरीफ साहब उस वक़्त 1991 में आए थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि अपने जनरल लोगों को क्यों नहीं संभालते, हमारे कश्मीर में ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो उसने कहा क्या करूं, हमारी सुनते ही नहीं हैं, हम तो दोस्ती चाहते हैं। यहाँ कोई फौज का इस तरह का आदमी कह सकता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्री वो कोई एक्शन लेगा? नहीं है। सो देयरफॉर ISI is doing what security concern में is trying to paralyze our economy, train the terrorists, indoctrinate मतलब radicalization among the strayed minds जो सिर फिरे हैं, और उनसे किसी तरह इंडिया डिस्टेबलाइज हो जाए। अब आप कहेंगे पाकिस्तान क्यों चाहता है? पाकिस्तान इसलिए चाहता है कि पाकिस्तान अब तक रिकंसाइल नहीं कर पाया कि इंडिया एक मजबूत कंट्री है, उस चीज़ उसे स्वीकार्य नहीं है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान। और वो कारगिल की लड़ाई का हार अभी तक भूल नहीं पाया है, 1971 की लड़ाई भूल नहीं पाया है, जिसमें बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गया। वो 1947-48 का कश्मीर का वॉर भूल नहीं पाया। 3 लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ। 47 में आज़ादी के बाद जब वो कश्मीर लेना चाहते थे, इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे थे, उसके बाद 65 की लड़ाई, उसके बाद 71 की लड़ाई, और 99 में कारगिल, सब फेल हो गए। अब क्या करें कि इंडिया को किसी तरह सिक्योरिटी कंसर्न में आप उसकी व्यथा को बढ़ाते रहिए, उसको हर्ट करते रहिए। तो जैसे कश्मीर के अंदर ट्रबल करो, स्टोन पेल्टिंग करो, 26/11 कराओ, हाईजैकिंग कराओ, वहाँ जो टेररिस्ट बंद है जैश मोहम्मद के उनको छुड़वाइए, ये सारी योजना पाकिस्तान से बन करके आती है। जासूसी करो, मेरठ में 9 डेव है, अक्सर अखबार में आप पढ़ते होंगे कि यहाँ जासूस पकड़ा गया। किसका है? ISI का है। अमेरिका का नहीं पकड़ा जाता, इंग्लैंड का नहीं पकड़ा जाता। दे आर ब्लेटेंट, दे आर क्रूड एंड दे आर रूड। तो उनसे हर यंग माइंड को सतर्क रहना है, नॉट इंडिविजुअली, आप अपने जागरूकता से, आप अपने अवेयरनेस से जानिए। मैं आपको वही कह रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू अराउज सम जिज्ञासा, जिससे आप जाने कि वो ये कार्रवाई कर रही है। हाल में पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से प्रेरित TTP, आप लोगों में से नाम सुना है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसने पेशावर में अटैक किया, पुलिस के यहाँ 100-200 मर गए। ये 1 महीने की बात है। कराची में किया। लगातार आतंकवाद हो रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन टैटर्स, जीर्ण है। उससे कैसे डाइवर्ट करें कि इंडिया के अंदर अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ा दो कश्मीर के अंदर, तो फिर हम कुछ हो सकते हैं। अल्टीमेट सफलता नहीं है, थैंक्स टू आवर फोर्सेस, थैंक्स टू आवर इंटेलिजेंस, लेकिन वो लगातार किए जा रहे हैं, करते रहेंगे। और सबसे लेटेस्ट पाकिस्तान का क्या अटेम्प्ट हो रहा है, कोई बता सकेंगे? एनीबडी? किस स्टेट पे वो प्रॉब्लम करना चाह रहे हैं? दैट इज पंजाब। वो जो सिरफिरे कुछ होते हैं जो कि चाह रहे हैं उसमें पृथकवाद, अलगवाद, सेपरेटिज्म की फीलिंग वो फैलाने के लिए USA से, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जो बसे हुए हैं, पंजाब के अंदर या हमारे और स्टेट्स में, यूपी में इस प्रकार के नहीं है कि जो इस चीज़ को मानते होंगे कि हम अलग हो जाएं। तो बाहर से उनके ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड बहुत कम है, लेकिन इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ाने के लिए व्हाट दे डू, दे फंड, दे फाइनेंस। इन 1985 दे हाईजैक कनिष्का एयरक्राफ्ट और उसके बाद उसको ब्लो कर दिया आसमान में, सुना होगा आपने, और फेमस केस है, कितने पेरिश हो गए इंडियंस। इस तरह की गतिविधियां, और कौन करा रहा है? मेनली पाकिस्तान। और अगर उसके सपोर्ट ना हो तो ये नहीं होगा।
तो हमें और सतर्कता की आवश्यकता है। तो एक चीज़ जो है, जो सबसे बड़ा एनिमी हमारा है, जो सेपरेटिज्म को प्रमोट कर रहा है, जो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ा रहा है, वो पाकिस्तान है। दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न जो हमारे देश का है वो हमारा है रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन आप जानते होंगे, रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन। आपके मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार की धर्म के नाम पे घुमा देंगे कि ये ठीक नहीं है, आप लड़िए। रोहिंग्यास का सुनाई पड़ता है अक्सर, धर्मांध लोगों का सुनाई पड़ता है अक्सर, और वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और ये ज़्यादा हुआ 2010 के बाद, जब आइसिस का आविर्भाव हुआ, द एडवेंट ऑफ द आइसिस, सब लोग जानते होंगे, मैं जितना सिंपल हो सके बता रहा हूँ। और सीरिया वगैरह में लड़ने के लिए जाने के लिए, और जो कंसर्न की बात है कि पढ़ा लिखा तबका उसमें जाने लगा। केरला के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट डिग्रीज वाले ये ग्लैमराइज्ड हो गए, और सीरिया में और बगदाद में दे स्टार्टेड गोइंग एंड फाइटिंग। इंडॉक्ट्रिनेशन का ये लेवल देखिए आप कितना बढ़ गया। रिलीजियस, दैट रिमेन्स ए मेजर concern as far as Indian security is concerned. We are working overtime, when I say we means our security forces, to de-radicalize, to reduce these radicalization programs, but the threat remains. Third is communalism, सांप्रदायिकवाद। अगर हम यूनाइटेड रहेंगे, स्वामी विवेकानंद के नाम पर है और सब कुछ हम देख रहे हैं, तो एक इस तरह की चीज़ जो पॉइजन है वो हमारे देश को वीक करेगी। कोई धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं किसी में भी, क्योंकि जब हम वीक होते हैं तो उसका एडवांटेज ले लेता है कौन? हमारा हॉस्टाइल क्वार्टर्स, जो हमारे खिलाफ है, जो हमारी तरक्की नहीं चाहता, हमारी G20 की लीडरशिप को नहीं मानता, खेल कूद प्रतियोगिता में हम आगे चल रहे हैं नहीं मानता, हम क्रिकेट में आगे जा रहे हैं नहीं मानता, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल असैसिनेशंस नहीं होते उसको, हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊपर है, कश्मीर के अंदर अब पत्थर नहीं फेंके जाते, वो असहनीय होता है, उसमें ईर्ष्या है, उसमें काफ़ी हद तक द्वेष है, और उसको बदला लेने के लिए कम्युनिज्म एक ऐसी चीज़ है, इन एडिशन टू रेडिकलाइजेशन, वो करेंगे। नेक्स्ट कंसर्न विच आई वुड लाइक टू शेयर इज दी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और अदर वर्ड्स नक्सलिज्म। ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एंड वेरी स्मॉल ट्रैक्ट इन वेस्ट बंगाल जहाँ है। अभी काफ़ी गिरावट आ गई है उसमें, स्टिल दैट रिमेन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रेट, और उसको सपोर्ट करने वाला कौन है? चाइना है। याद रखिए, उसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट हैंड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना की एक पार्टनरशिप है, एक कोलैबोरेशन है, जिसके आधार पे उन लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, असलहा, ट्रेनिंग एट्सेट्रा। उसी प्रकार पाकिस्तान और चाइना मिल करके हमारे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स को पनाह देते हैं। उल्फा की बात हुई, उल्फा के सबसे बड़े लीडर का नाम परेश बड़ुआ है, असमीज में उसको दोगुबा भी बोलते हैं, बड़ा भाई। ही इज़ फाइंडिंग शेल्टर इन चाइना। तो ये सपोर्ट उनको मिला हुआ है, और ये हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेबल नहीं रहा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा हमारे देश के ऊपर। तो दैट रिमेन्स ए वेरी मेजर, एक बहुत अहमियत रखने वाला कंसर्न, जिसको वी कैन नॉट ओवरलुक, वी कैन नॉट अलाउ इट टू गो आउट ऑफ आवर साइट। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका जानना ज़रूरी है। देन इफ यू आर नॉट गेटिंग टू बोर्ड, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर नेबरहुड, जिसके अंदर में आपको जानकारी मिल जाएगा कि इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न्स के पेरिफेरी में क्या हो रहा है। लेट अस से पाकिस्तान, मैंने बताया, बहुत अनस्टेबल है,
बलूचिस्तान के अंदर सेपरेटिज्म की मांग है, लोग कह रहे हैं कल अलग हो जाएगा, सिंध के अंदर असंतोष है, सब जगह पे है। बांग्लादेश हमारा नेबर और आज के तारीख में हमारा सबसे अच्छा ट्रस्टेड मित्र आज की तारीख में। वहाँ इलेक्शंस ड्यू है, वहाँ भी रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम है। 2016 में 1 जुलाई को ईद के दौरान वहाँ पे एक बेकरी में अटैक हुआ, इंडियन छात्र भी मारे गए। कहने का मतलब जो इंट्रोगेशन से जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, जो मरे, और उनके साथियों से जब पूछा गया तो बताया कि वो अच्छे घरों के लड़के थे। पहले हम लोग कहते थे ना कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं या एफ्लुएंट खानदान के नहीं हैं, सो दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और दे आर बिकमिंग एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट। ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के अंदर इन दिस बैकड्रॉप अगर आप देखते हैं सरकार बदलती है और दूसरी सरकार आती है जो इंडिया के खिलाफ है, तो दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स, द पंजाब सेपरेटिस्ट, द मणिपुरीज, द नागाज एंड एवरीबडी। और यहाँ पे आने लगेंगे, उनका कनेक्शन डी कंपनी के साथ मिडल ईस्ट में होगा, एंड दैट विल फर्दर हाइटन, एग्रवेट our security concerns, and therefore that calls for a watch. अब बांग्लादेश से हम चले आते हैं से बर्मा। बर्मा के अंदर आपको मालूम ही है फरवरी 2020 से वहाँ ऑंग सांग सूची जो भारत की पड़ी हुई हैं और भारत के प्रो इंडिया है, उनके फादर भी जनरल ऑंग सान इंडिया के फेवर में थे, उनको कैद कर दिया है, मिलिट्री डिक्टेटर है। आज का समाचार ये है कि वहाँ से एक पर्टिकुलर एथनिक कम्युनिटी जो मूल निवासी हैं चिन्स, वो मिज़ोरम में आ रहे हैं। अगर ज़्यादातर लोग इस प्रकार के इस तरफ को आ गए, बॉर्डर है, तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर सिक्योरिटी थ्रेट और बढ़ेगा। बांग्लादेश, बर्मा, पाकिस्तान। अब आते हैं हम श्रीलंका पे। 2019 में अप्रैल के महीने में श्रीलंका में फेमस ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी, चर्चों में हमला हुआ था। अब आप कहेंगे श्रीलंका में हुआ था तो हमारा क्या सिक्योरिटी कंसर्न। जितने परपिट्रेटर्स थे, ऑल दोज हु वर कॉम्प्लिसिट इन दैट अटैक, जिसमें 300 से ओवर लोग मरे थे, जैसा हमारा 166 देहांत हुआ था 26/11 में 2008 में, तो उसमें बदमाशी करने वालों में दोज रिस्पॉन्सिबल हैड लिंकेजेस इन सदर्न इंडिया, इन तमिलनाडु एट्सेट्रा। तो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के लोग हैं, उनके कनेक्शंस विद इंडिया, दे कॉज प्रॉब्लम्स एंड ऐड टू आवर सिक्योरिटी कंसर्न। ये हमारा इमीडिएट नेबरहुड है। अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर नहीं लगता भूगोल के दृष्टिकोण से, लेकिन जो हैपनिंग्स हो रहे हैं, और अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती के लिए नहीं चाहता, तो अफगानी पर्सनल लेवल पे इंडियंस के बड़े दोस्त हैं, तो वो एक हमारे सिक्योरिटी कंसर्न को बढ़ा सकता है। लास्ट कंट्री जो इमीडिएट नेबरहुड में नहीं है वो है मालदीव्स। 4 लाख का टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लेकिन रेडिकलाइजेशन मैक्सिमम। आपको अपडेट कर दूँ ऑथेंटिकली, ऑथोरिटेटिवली, कि वहाँ से करीब 300 से 400 लोग छोटी सी कंट्री के आईसिस से लड़ने सीरिया पहुंच गए थे। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा है। 1986 में वहाँ कू हुआ था। हमारे साउथ इंडिया में केरल और लक्षद्वीप से मर्सिनरीज, जो मतलब भाड़े के हैं, वहाँ गए थे। तो मैं नेबरहुड का इसलिए ख़ासतौर से आपको बता रहा हूँ, टू गिव यू एन आइडिया माय डियर फ्रेंड्स, कि ये भी हमारे को थ्रेट करते हैं। इसमें अगर हमारे स्टेटमेंट में एग्जेजरेशन हो, या आप समझे कि ये ज़्यादती है, कौन सी नई बात है, बड़ी जनरल चीज़ है, तो इट इज़ बेटर कि आप ज़्यादा सोचें थ्रेट को, टू टेक सेफगार्ड्स, जिससे हमारा देश जो है वो एकदम सुरक्षित रहे। ये हमारी अपील है आपसे, यंग माइंड्स को, अपनी जागरूकता को और बढ़ाएं। आप वेल इन्फॉर्म्ड होइए। आप मेडिसिन के छात्र हैं, आप आर्किटेक्चर के छात्र हैं, आप फाइन आर्ट्स के हैं, तो आप नंदलाल बोस के बियॉन्ड भी कुछ जानिए अपने देश के बारे में।
Swami Vivekananda was a student of literature, but he was concerned about India. He was concerned about the religion. He did not allow our religion to be drifted, और उसी के नाम की यूनिवर्सिटी है, उसके आइडियल्स को लेकर के चले। और अगर आपके अंदर जागरूकता नहीं होगी, मैं आज राउंड पे आपके फाउंडर साहब ले गए मुझे, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं कनेक्ट करता जा रहा था। ये जैसे ही नाम कह रहे थे, अधिकांश लोगों से मैं वाकिफ था, नॉट ऑल, उतना बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन आई वॉज स्टिल वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, रीजनेबली वेल इन्फॉर्म्ड। तो अगर आप बताएंगे तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, बियॉन्ड ग्रेज एनाटॉमी, as far as medical student is concerned or agriculture scientist is concerned, you will feel totally allegiant to your country, loyal to your country, कि हाँ ये देश हमारे इन कारणों से असुरक्षित है। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो हम इसको कर सकते हैं। एकाग्रचित्त हो करके विवेकानंद के आदर्शों को देख करके, विवेकानंद, लास्ट सेंटेंस बताऊंगा, सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ते में स्टूडेंट थे, उनका प्रोफेसर का नाम विलियम हैस्टी, वो पढ़ा रहे थे और पढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र नाथ दत्ता विवेकानंद को कहा कि तुम इतने एकाग्रचित्त हो, यू आर सो कॉन्सेंट्रेटेड, और मैंने एक आदमी के बारे में सिर्फ सुना है, और तब तक विवेकानंद दीक्षित नहीं हुए थे रामकृष्ण परमहंस से। बोले बेलूड़ में एक सुना है रामकृष्ण स्वामी है, ये प्रोफेसर ने कहा, और उसके अंदर ये एकाग्रचित्ता है, और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और भविष्य में मुझे उम्मीद है तुम अपने देश के लिए कुछ करोगे, उसकी संस्कृति के लिए, उसके ऐतिह्य के लिए। और बाद में साबित हुआ, दो ही डाइड एट ए वेरी अर्ली एज ऑफ 39 इन 1902, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके सामने है और आपके पीछे भी है, और आपकी यूनिवर्सिटी उन्हीं के नाम पे है। तो उनके आदर्शों पे चल के सुरक्षित रखिए अपने देश को, अपने समाज को, और मनोबल को मत गिरने दीजिए। यही आप युवा शक्ति है। और जो जिनका नाम लिया प्रोफेसर हेस्टी ने, जो एकाग्र चित्तता जो नरेंद्र दत्ता में और उनके कुछ गिने चुने दोस्तों के चेहरे पे देखी थी, माय डियर फ्रेंड्स, वेरी फ्रैंकली, विदाउट एनी एग्जेजरेशन, वो मैं आप में देख रहा हूँ। एक प्रॉमिस देख रहा हूँ ऑन योर फेस, अ ग्लो, एक रेडियंस। कीप इट अप एंड डू योर यूनिवर्सिटी वेल। थैंक यू वेरी मच। Sir, I want to ask one question. I have heard that after 1971, when Sheikh Mujibur Rahman was the president of Bangladesh, he had offered that let Bangladesh be a state of India. He wanted to merge that country with India. How much is that correct? And if the offer was there, then why India did not accept it? Well, good question. But to my knowledge, Sheikh Mujibur Rahman may have wanted it from within, but did not ask Bangladesh integration into India, because he was in prison in Pakistan for 10 months and he had aroused the people to fight against the Pakistani rule, and his dream was to become leader of Bangladesh, the Prime Minister of Bangladesh. So he would personally not like to be part of India and lead a separate country to prove his leadership. This is one. Second part of your question is, why did not India agree to it? If I understood you correctly, India was already reeling in 1971-72. The pressure of the refugees, millions who had come from Bangladesh, they were to be fed, and many of them were not born, but you must have seen then, we were paying extra money through our postage stamps, etc. for revenue. तो उतने लोगों को खिलाना, और उस वक्त 93,000 पाकिस्तानी prisoners of war भी हमारे कब्जे में थे, it would not have been practical. So that is the reason India rejected it. I want to know that how India tackling the issue of security regarding Chinese military presence on Coco Island of Myanmar and in Hambantota port of Sri Lanka. नहीं, आपका सवाल पहले तो चाइना को कैसे डील करें, और दूसरा सवाल है श्रीलंका। Sir, Chinese military presence on Coco Island of Myanmar, as we have seen in newspaper that
there are some report that China's making a military base on Coco Island of Myanmar. Okay. China's military presence is in Myanmar because of the long historic relationship, and Coco Islands is in Myanmar and not in Sri Lanka. तो इंडिया को डील करने के लिए इंडिया केवल उसको वॉच कर सकती है, बिकॉज श्रीलंका म्यांमार इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री अंडर मिलिट्री रूल. वहाँ से चाइनीज़ को भगाने के लिए इंडिया कैनॉट यूज़ इट्स मिलिट्री, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, सो इंडिया विल नॉट डू इट. एज फार एज योर क्वेश्चन ऑफ श्रीलंका में, द आइलैंड वेयर चाइनीज़ प्रेजेंस इज़ देयर इज़ नोन एज हम्बनटोटा, HAMBANTOTA, और वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है. चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम है जिसको कि इंडिया सस्पेक्ट करता है इंडियन ओशन के अंदर जो जहाज़ जा रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस से मॉनिटर करती है. अगेन वो दूसरे कंट्री के अंदर में है, टेरिटोरियल डोमेन में, तो इंडिया वुड नॉट लाइक टू यूज़ इट्स मिलिट्री टू न्यूट्रलाइज इट. एम आई क्लियर? जय हिंद सर, मेरा नाम काशिफ खान है और मैं होटल मैनेजमेंट में BSc हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ. सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के कई युद्ध हो चुके हैं जैसे कि आपने बताया है, और पाकिस्तान ने उन युद्धों में मुँह की खाई है, वो हारा है. एक बात सर आपने और बोली है कि इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जैसे स्टोन थ्रोइंग और ISI की जो भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे कि 26/11 का जो अटैक हुआ था, तो सर इन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए हम इंडियंस को क्या करने चाहिए सिक्योरिटी के पर्पज से सर? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी प्रोफेशनल क्वेश्चन. अब ये इस प्रकार का है, ये बराबर से चलेगा. पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है कि उसके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे कभी भी. जैसा आपने देखा, मैंने 3-4 वॉर के उदाहरण दिए, 47, 48, कारगिल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो कभी भी सक्सीड नहीं किया. इट विल कंटिन्यू टू बी. इंडिया क्या करे? कॉन्स्टेंटली विजिलेंट रहे, सजग रहे, हमेशा जागरूक रहे, अपनी इंटेलिजेंस को और बढ़ाए, जिससे कि हैपनिंग से पहले हमको पता लग जाए कि ये हो रहा है. वो कारगिल में जैसे कि हवा ही नहीं लगी और अचानक पता लगा, सुबह अखबार में आप देख रहे हैं कारगिल पे कब्जा हो जाए. तो हमको थ्रू आउट अलर्ट रहना है कि ये चीज़ जो है उसको किसी तरह, आजकल के ज़माने में उस प्रकार का इंटेलिजेंस नहीं है कि मुखबिरी हो रही है, किसी ने आके आपके कान में बता दिया. इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस है, इंटरसेप्शन है. 2005 की बात त्यागी साहब बता रहे थे, तब रेडियो इंटरसेप्ट पकड़ा गया था, और अभी तो 2023 से 18 साल उसके बाद बिल्कुल मॉडर्न सारी चीज़ें हो रही हैं, देख रहे हैं. तो हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे सर्वेलांस सिस्टम को, हमारी स्नूपिंग को, मतलब ईव्स ड्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, उसको और मॉडर्नाइज करना चाहिए और प्रभावशाली करना चाहिए. Sir, as you first of all, I would like to thank you for this informative lecture. My question is, as you talk about almost all neighborhood of India, you talk about Sri Lanka problem, you talk about China and Pakistan, but we are facing a current a very big problem that is about Rohingyas from Bangladesh. We are watching that almost entire West Bengal is occupied by the Rohingyas, and we are watching them now in Jammu Kashmir and Uttarakhand, the far off places of India, the internal areas of India also. So, sir, now what the Security Council is doing about that? So, my question is about Rohingya especially. Well, we are, if I have understood you correctly, our borders are very alert. आप सुनेंगे कि उनके बॉर्डर इनकर्शंस होते हैं और हम उसको न्यूट्रलाइज करते जाते हैं, और ये गेम हमेशा चलेगा. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड द बिगेस्ट फोर्स 1965 में बनी थी, आज भी बड़ी कामयाब है, वो उनको फॉइल कर रही है. और भी जितने फोर्सेस लगे हैं मिलिट्री, वो सारी चीज़ कर रहे हैं. लेकिन मैं दोबारा इस पॉइंट पर भी कहूँगा कि हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस शुड बी टॉप, जिससे कि हम बॉर्डर के स्कर्मिशेस को होने के पहले ही न्यूट्रलाइज कर सकें. एम आई क्लियर? देखिए, ऐसा है कि इंडिया और सोवियत संघ, मैं ज़रा पर्सपेक्टिव में बोल दूं कि ये हमेशा से दोस्त रहे हैं आज़ादी के टाइम से, आज़ादी के पहले से. और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री के, ज़रा उनको बता दूं कि जो उनका डिक्टेटर होता था स्टालिन 1953 में, जिसका देहांत हुआ, वो इंडियन राजदूतों से भी नहीं मिलता था, किसी भी फॉरेन के. केवल इंडिया के एक राजदूत से मिला, वो डॉक्टर राधाकृष्णन से.
जब वो भारत के राजदूत थे सोवियत संघ में, मॉस्को में। क्या दर्शाता है ये चीज़? सोवियत संघ का भारत के प्रति प्यार। जब इंडिपेंडेंट हो गया हमारा देश, तो सोवियत संघ के बुल्गैनिन और क्रुश्चेव इंडिया के अंदर आए, विजिट किया सन 55 में, सब जगह घूमे और उन्होंने हमारे औद्योगिक भिलाई कारखाने में उन्होंने मदद करी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए। स्कॉलरशिप दिए इंडियन स्टूडेंट्स को जो कि रशिया में जाके पढ़ने लगे। और सबसे बड़ा योगदान सोवियत संघ का था, आपको पता होगा 1971 की लड़ाई में जब अमेरिका पाकिस्तान का साथ देने लगा, तो सोवियत संघ ने भारत के साथ एक 20-year-old ट्रीटी साइन की 71 में कि अगर कोई देश भारत पे हमला करता है तो सोवियत संघ उसको इंटरवीन करेगा। और उसने इंटरवीन किया, संयुक्त राष्ट्र में, यूएनओ में उसने वीटो किया। तो उसकी दोस्ती हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है, इंडिया के फेवर में रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1989 में सोवियत संघ टूट गया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स अलग हो गए, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS हो गए, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, तो वो रशियन फेडरेशन होकर रह गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन और भारत के अंदर पर्सनल लेवल पे दोस्ती अच्छी है, लेकिन रशिया थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ भी टिल्ट हो रहा है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। शायद वो अपने असलहे बेचना चाहता है पैसे के लिए, इसलिए। लेकिन भारत से आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिक आंसर है कि रशिया के साथ दोस्ती बरकरार है। एम आई क्लियर? सेटिस्फाइड? थैंक यू। My name is Dr. Shruti Kanodia. I am a student of prosthodontics from Subharti Dental College. सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप भगवद गीता पढ़ते हैं, तो आपने भगवद गीता को अपने प्रोफेशन में एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट कैसे अप्लाई किया, और भगवद गीता ने आपको ऐसी क्या टीचिंग्स दी जो आपको IPS बनने में हेल्प की? वेरी गुड क्वेश्चन। एंड ऐसा है कि मैं IPS बनने के पहले, पुलिस सर्विसेज बनने के पहले गीता को समझ नहीं पा रहा था। मतलब पढ़ लेता था औपचारिकता पे कि पढ़ लिया, विवेकानंद को बहुत पढ़ा बचपन से, जो रामकृष्ण मिशन है वहाँ जाते थे, लेकिन समझ नहीं पाता था, उसके फ़लसफ़े को नहीं पढ़ रहा था, फिलॉसफी नहीं पकड़ पाता था कि विवेकानंद क्या कहते हैं। कभी कभी डाउट होता था कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस में शिकागो में गए, वो ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो हम कहते थे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, संबोधित करेंगे लेडीज़ एंड फ्रेंड्स। तो उसके डीप को मिस करता था। तो सच बात तो ये ईमानदारी कि वो हमको इंस्पायर नहीं कर पाए, एक्सेप्ट कि मैं उसको अपने दिल के करीब रखता था। हाँ, एक चीज़ ने इंस्पायर किया, गीता का जहाँ तक बात है, कि जिसमें जो लॉ ऑफ कर्म आया कि अपने कर्म जो है बिना फल की चिंता ये करते चले जाओ। जैसे आप इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं कि IAS बनेंगे, ये बनेंगे, आप फेल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद गीता के परसूट में कि करते जाओ, और आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है, नॉट द रिलीजन वाला, अपना जो कर्तव्य पलायन या आपका जो चार्टर है उसमें आगे जाओ। ये हेल्प किया। लेकिन और प्रगाढ़ रूप से, प्रोनाउंस तरीके से हुआ जब आप सर्विस के अंदर आ गए। उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गीता एंड विवेकानंद, उसमें ये रहा कि आपने बिना भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और आप आगे चलते गए, एंड दैट शोड यू द सक्सेस स्टोरी। कुछ समझा पाया मैं आपको? ये है। अभी मैं, हाँ सॉरी, बोलिए। हाँ, तो दैट इज़ इट। तो मेरी अपील ये है कि जैसे गीता इतने में नहीं ला सकता, मेरी ये है, दिस इज़ एन इंटरप्रिटेशन जो मेरे दादाजी ने लिखी थी उसी में। तो अगर आप इसको अपने पास रखें, इस गीता को या विवेकानंद को सानिध्य में, अभी हमारे साथ विवेकानंद की किताब साथ में चल रही है, जिससे मैंने आपको कोट किया, बद्रीनाथ चतुर्वेदी की किताब है, फाउंडर साहब के बगल में रखी है, वो मैं गाड़ी में भी पढ़ता आता हूँ और रटी हुई है मुझे किताब। 12 जनवरी को मैंने एक नोएडा के यूनिवर्सिटी में, उसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मुझे बुलाया था विवेकानंद पे बोलने के लिए। मैं घंटों बोला उस पर और क्वेश्चंस लिए। तो ये साथ में रखता हूँ, चाहे फिलॉसफी को पकड़ पाऊँ नहीं, ग्रास्प कर पाऊँ भी नहीं,
लेकिन दैट इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। आप समझ रहे ना, आप कई लोग डिस्प्यूट करते हैं भगवान है कि नहीं है। आइडल वर्शिप विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस था, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, इसमें भगवान नहीं है, तमाम आपने किंवदंतियाँ सुनी होंगी। लेकिन ये था कि वो एक माध्यम है जिसके थ्रू हम जाएंगे। एक छोटा सा किस्सा मैं बताऊं, मैं मॉरिशस में 5 साल था, वहाँ का NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो जो प्रधानमंत्री था उन्हीं को रिपोर्ट करता था मैं। तो उनको कोविड हो गया 2020 में, और एयर एम्बुलेंस से वो मॉरिशस से यहाँ चिकित्सा के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुलाया और सब खातिरदारी करी। तो जब वहाँ तैनात था, इसका नवीन संस्करण नहीं, पुराना संस्करण एक उनको दे दिया था। बड़ा अंग्रेज किस्म के वो आदमी थे, बैरिस्टर भी थे और मेडिकल डॉक्टर भी थे। तो गीता दे दिया था मैंने कि हमारी लिखी हुई है सर, इसको रखिए आप। और वो सिगार पीते थे, रख दिया। ये बात है 2012 की। और जब ये 2021 में यहाँ चिकित्सा के लिए आए और ठीक हो गए, मैं मिलने गया मास्क पहन के, तो उन्होंने हालचाल पूछा, एक बात कही, बोले यार हमारे समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन हमारे विरोधी ने जब मैं पावर से हट गया मुझे जेल में भर दिया था, तो मैंने कोई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ में ढूंढ रहा था, तो तुम्हारी गीता मैंने अपने पास रखी और मेरा टाइम बहुत अच्छी तरह से गुजर गया, वो सोलेस मिला। तो IPS से पहले का जो आपका सवाल था, कि मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि आई कुड नॉट फैथम, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट इज स्टिल आई एम फार अवे फ्रॉम फुली कॉन्वर्सेंट विद दैट। लेकिन दैट मेयर प्रेजेंस ऑफ द बुक और उससे करके जो आपको मॉरल स्ट्रेंथ मिलता है, जो एथिकल एंथुजियाज्म मिलता है, दैट कीप्स यू गोइंग। ये था सर। एक्चुअली मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आज के टाइम पर धार्मिक किस्सा सबसे ज़्यादा है, तो आपको क्या ही लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सबसे ज़्यादा सुरक्षा का मामला है कि अगर फ्यूचर में ये चीज़ हो जाए कि अगर कोई कंट्री इंडिया पर डोमिनेट कर सकता है, आप ऐसा समझते हैं? अदर देन सोवियत रशिया इज बांग्लादेश मिलिट्री माइट की कंट्री नहीं है, बट मॉरल सपोर्ट के लिए है, और नो अदर कंट्री इन दिस थिंग। अदरवाइज US इज़ ट्राइंग टू कोज अप टू दैट अस, जैसा आपने देखा क्वाड, पाकिस्तान वो जापान और ऑस्ट्रेलिया को लेकर के 4 कंट्रियों का एक कॉन्ग्लोमेरेट बनाना चाहता है, सिंडिकेट, दैट इज़ देयर। एंड सो वी कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन USA, बिकॉज अगर हिस्ट्री को फैक्टर करें, विच आई एम ए ग्रेट बिलीवर इन, तो अमेरिका विल नॉट बी कंफर्टेबल विद अस, जैसा कि हमने देखा है 1971 की लड़ाई में, उसने 7th फ्लीट भेज दी निक्सन और किसिंजर ने। सो ओनली एज ऑफ नाउ द कंट्री वी कैन डिपेंड इज बांग्लादेश, बट इट डज नॉट हैव ए वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशंस। तो अगर कोई घूम फिर के हो ही सकता है तो फिर वो रशिया ही एक है। आपका असल में इतना अच्छा आपने बताया है और आप बता रहे हैं कि अगर ये शाम तक भी सेशन चलता रहेगा लोग तृप्त नहीं होंगे। आप चलाइए शाम तक। मैं एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आपसे अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए जानना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि आप आगे का कार्यक्रम चलाएँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1948 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग हुई, जो पहले से उन्होंने अपने कुछ कबालियों को भेज दिया और बाद में उनके वो भी थे, और फिर हम लोग जो थे वो इंडिया की तरफ से UN में चले गए और सीज फायर हो गई। मैंने ये जाना है कि उस समय जब सीज फायर हुई और UN ने जब वहाँ पर सीज फायर की है, तो गिलगिट और बाल्टिस्तान का एरिया, जो अभी CPC की बात हुई, जहाँ से वो सड़क निकलती भी है, वो एरिया तब तक नो मैंस लैंड था, वहाँ पर किसी की फौज नहीं थी, ना भारत का वहाँ पर फौज थी और ना ही पाकिस्तान का था। और पाकिस्तान ने उस एरिया पर सीज फायर के बाद में कब्जा करा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो सूचना है वो कहाँ तक सही है, और अगर ये सही है तो भारत ने उसको कभी क्यों नहीं चैलेंज किया और उस पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं की? और नंबर 2, भारत ने क्यों नहीं किया, दैट इज़ टू बी आंसर्ड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप जो उस वक़्त की थी। इसके साथ एक और चीज़ बता दूँ, मे बी दैट यू आर इम्प्लाइंग दैट कि उस वक़्त प्लेबिसाइट पे हम लोग एग्री कर गए थे। अगर आपको याद होगा 48 में वी हैड एग्रीड कि अगर प्लेबिसाइट मतलब हो जाए, इन द सेंस कि बताइए छोटा मोटा इलेक्शन टाइप का रेफरेंडम या प्लेबिसाइट, विच देन द पॉलिटिकल लीडरशिप हैड एग्रीड टू,
तो उसके बाद हम रिट्रैक्ट कर गए पब्लिक प्रेशर में। अगर वो हो जाता तो यू नेवर नो, जो कश्मीर के अंदर के कश्मीरीज थे मोस्टली ऑफ ए पर्टिकुलर फेथ, दे वुड हैव ऑप्टेड आइदर टू गो विद पाकिस्तान और बिकम इंडिपेंडेंट, हिस्ट्री अलग होती। थैंकफुली वो नहीं हुआ एंड कश्मीर इज स्टिल विद अस एंड इट विल रिमेन विद अस। थैंक यू वेरी मच। बस मेरा इसमें सबमिशन यही था कि अगर उस समय भारत ने, जैसे कि पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद भी घुस के उसने वहाँ पर कब्जा कर लिया, तो वो अगर ऐसा भारत ने चाहा होता और अपनी फौज भेज दी होती तो गिलगिट और बाल्टिस्तान, जिसमें से चाइना की रोड निकल रही है, वो हिस्सा आज कश्मीर के पास होता और उसमें से ये हमारी एक सिक्योरिटी की समस्या नहीं होती। लेकिन आपका कहना सही है कि उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो सही समझा होगा वो किया होगा। वी कांट से एटलीस्ट, मैंने ये बात क्यों जानबूझ के छेड़ी, इसलिए कि हमें पता होना चाहिए कि तब की लीडरशिप के पास कोई विजन नहीं था। दिस वॉज द रीज़न। और आज की लीडरशिप के पास एक विजन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your words of wisdom, and please stay with us on the dais. The memory of the magnificent monuments and memorials may slip into oblivion, but a word of appreciation, a word of gratitude may indelibly etch its presence in our minds. I now request our founder, Dr. Atul Krishna sir, to present our venerated guest speaker with a memento as an expression of our gratitude and inexplicable bond we have with him. Thank you so much, sir. May I now call upon Dean and Academics Professor Dr. Vijay Vadhavan sir to pay a rich tribute to our honorable guest speaker and dignitaries by way of proposing vote of thanks. Jai Hind, one and all present in this auditorium. I, Dr. Vijay Vadhavan, Dean Academics, Swami Vivekananda Subhati University. It's my proud privilege to propose this vote of thanks to this august gathering in this particular auditorium. Respected sir, we are deeply indebted to Shri Shantanu Mukherjee, IPS, retired security analyst and advisor, for gracefully accepting our invitation and for his excellent deliberations on India's security concern. Thank you, sir, for your eye-opening, mind-boggling and thought-provoking lecture and subsequent interaction with the participants. We are honored by your majestic presence in this auditorium, sir. We are deeply indebted to our founders of the Subhati movement, late Dr. Mukti ma'am and Dr. Atul Krishna sir, who stand as a pillar of power behind all the events of Subhati. Thank you, sir, for your gracious presence, and your mere presence in this program shows that your commitment towards the dictum nation before self. Thank you so much, sir, for gracing the occasion. And we all know that wheresoever Mukti ma'am is, she'll be showering her choicest blessings upon all of us. And ma'am, you are dearly missed every moment of each and every day that we spend in this university. We are extremely grateful to our Honorable Chancellor ma'am, Srimati Stuti Kakar ma'am, for who has always encouraged us to organize such events, and thank you ma'am for being a pillar of support always. I would like to thank our Honorable Vice Chancellor Dr. Major G.K. Thaplyal sir for starting this wonderful lecture series, and I'm sure that we are going to see many more such sessions in the near future too. Thank you so much, sir. We would like to express gratitude towards our dynamic, vivacious, ever-smiling CEO Dr. Shalya Raj for carrying on the mantle of the Subhati University on her young shoulders, and for always urging us to push ourselves beyond our comfort zones and take out the best from us. Thank you so much, ma'am. We thank Honorable Pro Vice Chancellor for sparing his valuable time and for being with us and gracing the occasion and for delivering the introductory remarks. Thank you so much. We thank Colonel Tyagi for sharing his thoughts on the wartime experiences. It was really an eye-opener for all of us. Thank you so much.
We are thankful to all the deans, HOIs, and HOE head of departments of all the faculty members for turning out in huge numbers for this lecture and contributing towards its success. Our special thanks are due to all the participants of this lecture for showing keen interest in the program. Thanks a lot, Dr. Pintu Mishra sir, for providing the lovely arrangements for this guest lecture. Huge thanks to the press and media for covering this lecture elaborately. My sincere regrets if I have missed anyone, but all of you are in thoughts. Jai Hind, Jai Subharti. Thank you so much.